अभी we were talking about कि I think you'll understand seeing this हाँ मैंने ये देखा है ना हाँ मतलब कि the treatment is all about feeding the human brain with all these qualities which our patient lack because बचपन से ही नहीं हुई तो हमने अब क्या फीड करना है क्या फीड नहीं करना। हाँ आप सुना रहे थे, आप कंटिन्यू करो। ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿੱਦ ਪਗਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਜਿੱਦ ਪਗਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੰਮ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਜਿੱਦ ਤੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਜਿੱਦ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡਿਕਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਹੈਗਾ। ਐਡਿਕਟਿਵ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਮਾਈਂਡ, ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇਣ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਜਿੱਦ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਔਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿੱਦ ਕਰਨੀ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ CD ਪਲੇਅਰ, ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਗੇਮਸ ਖੇਲਦੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ PC3 ਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਤੋ ਅਲਫਾ ਬੈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਲੇਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਟ ਵਾਸ ਇਨ 7th or 8th ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਉਹ CD ਪਲੇਅਰ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿੱਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਦਮ ਨਾ ਉਠਾ ਲੇ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨਾ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਫਿਰ ਜੂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਪਛਤਾਵੇ 'ਚ ਗਿਲਟ 'ਚ ਪਾਣਾ, ਗਿਲਟ ਟ੍ਰਿਪ, ਬਹੁਤ ਗਿਲਟ ਟ੍ਰਿਪ। ਹਾਏ बेचारे को ऐसे कह दिया। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਗਿਲਟ ਟ੍ਰਿਪ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ, ਔਰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਉਦੋਂ ਦੇਖੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੰਬਈ ਪੜਨ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ ਅੱਛਾ ਆਇਆ ਡਿਊਰਿੰਗ ਹਿਸ MBA, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ PG MBBS ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ और उस वेले उन्हें सानू जदों भी फोन करना, देखो मेरे साथ आपने ऐसे किया, मुझे ये नहीं खेलने दिया, मुझे क्रिकेट नहीं खेलने दिया। मैंने कहा बेटे आपकी आंख में चोट लगी थी तो आप सेकंड स्टैंडर्ड में थे तो हम डेफिनेटली होते वरीड होते हैं, नया लेंस पड़ा पूरा कि पूरा हम हिल गए थे तभी। तो वो ना हमें गिल्ट ट्रिप में बहुत डाल देता था, As if हमने कोई गलती कर दी है। फिर हम बैठ के हस्बैंड वाइफ दोनों के अच्छा क्या हमने गलत कर दिया। फिर एक दो बार इसके पापा ने ये भी बोला कि अच्छा बच्चे अगर तेरे को लग रहा है कि ये फील्ड में तुम खुश नहीं है MBBS में तो आ जा वापस आ जा, दोबारा से पेपर दे लेते हैं, तुम इंजीनियरिंग साइड ट्राई कर लो अगर तुम्हारा हुआ है। क्योंकि वो कहता था मुझे फिजिक्स में शौक है लेकिन ये तो मैं मेडिकल में आके तो मुझे अपने पसंद का कुछ यहाँ नहीं मिल रहा। मतलब कहने का मतलब कि हम भी कंफ्यूज रहते थे कि किस तरह समझाएं, क्या करें तो बच्चा कहीं टिके। और मुझे लगता है सारे हम पेरेंट्स इसमें फंसे होते हैं। हाँ वो चीज़। और अब जब मैं ट्रीटमेंट में आए हैं सिंस लास्ट 1.5 साल, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਅਸੀਂ 8th of May ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ 2023 ਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰੇ ਕਿ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਅਸੀਂ ਲਖਨਊ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਮਾ ਲਿਆਇਆ ਇਹ ਆਪ ਹੀ 4 ਪੈਕਟ ਮੈਗੀਜ਼ ਦੇ, और उन्हें पता है मेरी सिस्टर आ रही है, वो बाहर पढ़न गई है, वो आ रही है तो चलो, लेकिन उसके पापा ने कहा कि 15 दिन बाद खोलना है, चल के कह गए चले गए। मैंने फोन आया कि मम्मा वो ना मैगी खा ली है कि वो असी इकट्ठे है दोनों सिस्टर्स भी इकट्ठियां हैं, तो मैं क्या छोटी भैन कह रही होनी कि नहीं खाना क्योंकि वो बड़ी स्ट्रिक्ट है कि नहीं वो नहीं खाना। कहता हाँ वैसे ना पापा ने भी 15 दिन कहा सी तो वेट ही कर लेना, मतलब मैनू फोन करके कन्फर्म किया कि मैं वेट कर ला। कहने का मतलब कि चेंज है ना ये। और पहले वाला हुंदा ते की करना सी, पुछना भी नहीं सी, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਸੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 4 ਦੇ 4 ਪੈਕੇਟ ਖਤਮ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਾਂ ਥੋੜੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ,
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, particularly ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਖਾ ਲੇਗਾ ਇਹ टाइम पे हेल्दी है ना, हाँ न्यूट्रिशियस घर फूड। का भी सब्जियां 2-3 सब्जियां बना दी, राजमा चिट्टे छोले जो कि इजी, वाइट राइस बच्चे ने खुद बना लिए। और जब मैं आई ना संडे हमारी फ्लाइट हमें डिलेड हो गई, हमें री शेड्यूल करनी पड़ी, तो हम रात को 11 बजे पहुंचे। और हम भी ऐसे हैं, हमने भी कोई बाहर खाते नहीं, तो हमने भी हार्डली कुछ खाया था पूरा दिन। तो हमने कहा कि बेटी को कि ना हमें ना फुलके बना देना, हम पहुंचे घर। घर आके कहती मम्मा सॉरी ना सारा खाना ना खत्म है। मैं कहा बेटी सॉरी नहीं है, आई एम वेरी हैप्पी कि तुमने 4 दिन में ये खाना खत्म कर दिया। अगर तुम रखते ना तो मुझे गुस्सा आना था कि यार मैं इतनी मेहनत करके बना के गई और तुम लोग ने बाहर का खाना खाया। कहते नहीं, एक दिन हम बाहर गए थे, हमने सिबलिंग टाइम बिताया था, हम एक बार गए थे, लेकिन बाकी टाइम हमने घर में खाया। तो मैं कहा कोई गल नहीं, हम अचार के साथ खा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई इश्यूज नहीं है। अब मैम जो ये शेयर कर रहे हैं मतलब मैगी और खाना, ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, बट इसके पीछे जो चीज छुपी है वो है कि किस तरह से हम राइट वे में ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं। मतलब जो हमारी आदतें बन जाती हैं बचपन में, तो छोटी मैगी वाली हरकतें करेंगे ना, पर दिमाग जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा जानवर, तो वो बड़ी बड़ी फिर हरकतें करेगा ना। आज छोटी गलती करी है, कल को बड़ी गलती होएगी, ब्रेन तो फिर वैसे एक्शंस करेगा ना, वो फिर बड़ी जिद्दें करेगा, बिल्कुल अल्टीमेटली तो फिर वो बीमारी बन गई ना। यही बच्चा पहले बहुत बड़ी बड़ी जिदें कर चुका है, और आज यही जो पेशेंट हमारा है वो इतनी छोटी सी बात में भी पूछ रहा है, इसका मतलब कि वहां तक नहीं जाएगा ना। अगर छोटी सी बात हमसे पूछ के कर रहा है तो वो स्टेज तक नहीं जाएगा ना, जो जो पहले कर चुका है काम। कहने का मतलब यही रिकवरी का रिवॉर्ड है ना, बिल्कुल। कि अभी आज पूछ रहा है। और मैं आपको एक चीज और बताऊं कि इस चीज में एक चीज ये लेके चलो कि छोटी छोटी चेंजेस, हम कहने को लगेगा कि ये क्या मैगी की ऐसी बातें हो रही है, नो, जो दिमाग में जो चेंजेस चल रहे हैं ना वो बड़े घुमावदार चल रहे हैं। और वो घुमावदार चेंजेस कब किस डायरेक्शन में एकदम से घूम जाए ना, हम बता नहीं सकते। इसलिए हमें हर चीज को उसको हमने इग्नोर नहीं करना। हाँ, मैंने उसको पिन पॉइंट किया, मैंने कहा वेरी गुड कि आपने नहीं खाया, और पड़े हैं पैकेट उधर ही पड़े हैं, 15 दिन का टाइम दिया, और देखो वो गया, इम्पल्स गई, पैकेट उतने पे है। मैंने आंदे पहला की किया, पैकेट किसी और जगह पे रखते ताकि विजिबली ना हो। मतलब आपने हाँ। इसका मसल स्ट्रॉन्ग करा, इसको पेशेंस सिखाई ना, तो इसको फीड मिल रही है, उससे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इट्स नॉट अबाउट मैगी और इट्स नॉट अबाउट अ स्मॉल थिंग। इसका मतलब है कि ये पीएफसी को स्ट्रॉन्ग किया गया, कि अगर आज उसको मैगी के लिए पेशेंस आएगी तो कल को एक बड़ी चीज के लिए भी पेशेंस आ सकती है। मतलब दिस इज हाउ आवर ब्रेन इज ट्रेन्ड। दैट इज व्हाई साइंस एक्सपर्ट्स मेड दिस अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, कि ट्रेन करो अपने पेशेंट को। डाइवर्ट कह लो, आपको उसको स्किल यूज करके डाइवर्ट करने के लिए भी हमें स्किल सीखनी है। डाइवर्ट हम पहले भी करते रहे हैं, क्योंकि लेकिन हमारे पास स्किल्स नहीं ना थे, तो हम वापस उधर ही फॉल कर जाते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम में आने के बाद जो हमने सीखा है ना, क्योंकि आज ही हम सर से मिले तो सर ने यही कहा कि आपके जो फैमिली का स्टार है ना वो आपका पेशेंट है, क्योंकि आपका पेशेंट नहीं होता तो आप सारे इधर नहीं आते और एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होते सारी फैमिली। मेरा फैमिली ऑफ 5, हमारे बेटा है जो पेशेंट है और 2 बेटियां हैं। तो बिकॉज ऑफ हिम हम यहाँ पे आए और हमने प्रोग्राम सीखा, और उसमें मैम आप जो कह रहे हो ना, डिस्ट्रैक्शन नहीं, स्किल्स जो है ना, छोटे छोटे स्किल्स, छोटे छोटे स्किल्स। मैम आप किसके साथ आए हैं, इनको देना। हाँ जी, आपके हस्बैंड है वो। हाँ जी, किस लिए एडमिट हुए हैं हम जी? क्यों एडमिट हुए हैं? बैठ के बोलिए आराम से। ड्रिंक करते थे अच्छा जी। और कौन से रूम में आप? 109 में। ओके ओके। हाँ। और ये फर्स्ट ट्रीटमेंट है? नहीं जी, ये 4th टाइम आई हूँ मैं यहाँ 4th पे। टाइम। अभी बोल रहे थे मुझे सारा कसूर जेंट्स का निकाले, लेडीज का भी कोई निकाला है। मैम ने, मैं बोलूं, मैं क्या बताओ आप उनको भी। चलिए उनका छोड़िए, आप बताइए कि आप जो यहाँ पे सुन रहे हैं और हम 4th टाइम आ गए, आपको क्या लगता है कि क्या कमी रह जाती है कि हम रिकवरी में नहीं जा सकते, नहीं मतलब नहीं जा पा रहे? मेरे को खुद ही नहीं समझ आ रहा कि हमारे में क्या कमी है, बार बार ये चीज क्यों हो रही है। हमारे में क्या कमी नहीं, मतलब प्रोग्राम की कौन सी चीज? वेरी सिंपल,
सिंपल ये है कि एक प्रिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है कि आपको ऐसे ऐसे लाइफ जीनी है, आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, आपको ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो एक चेकलिस्ट बनानी है, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आप अपने फैमिली काउंसलर के साथ बैठिए, अपने काउंसलर के साथ बैठिए कि व्हाई डू वी कम बैक, बिकॉज देयर आर पीपल हु आर नॉट कमिंग बैक। और अगर हम आ रहे हैं, स्लिप्स हो रहे हैं, रिलैप्सेस हो रहे हैं, तो क्यों, डिजीज तो प्रोग्रेस करता जा रहा है ना। जी जी जी। अब जो चौथी बार आ गया और वो ये बोल रहा है, इस डिबेट में जाना चाहता है कि मेन और वुमेन की बात करे, तो वो तुम्हारी रेंज में ही नहीं है, रेंज में नहीं, उसको बिल्कुल तो पेन बिल्कुल। ही नहीं हो रहा। मैम इसमें मैं एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहती हूँ, जो नम्रता मैम ने किया उसको कंटिन्यू। आप चौथी बार इधर आए हो, जी। पेशेंट की बात छोड़ो, आपकी पेन हर बार बढ़ी है कि घटी है? आपकी अपनी अंदर की पेन जो आपके अंदर है, जिसको आपने किसी से अभी तक शेयर नहीं किया होगा, वो बढ़ी है कि घटी है, ये बताइए। बड़ी है वो। और वो आप और भी बढ़ाना चाहते हो? कब तक सहन करोगे ये पेन? आपकी क्या लिमिट है वो पेन सहन करने की? आपने कुछ आइडेंटिफाई किया अपने बारे में? क्योंकि आपका फोकस पेशेंट की तरफ तो चल ही जा रहा है, और लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन आपने अपने बारे में सोचा कि आपकी कितनी लिमिट है वो पेन सहन करने की? आज बैठ के सोचिए प्लीज, बिल्कुल। है ना? क्या ये तो नहीं दिमाग में चल रहा कि अब हो गई उम्र, जितना जीना था अब देखी जाएगी जो होगा? आता कई बार होता है। तो एक स्टेज आती है, ये भी आ जाता है हम्म। कि मैम हम नम भी हो जाते हैं, हमारे लिए वो नॉर्मल बन जाता है। ठीक है, 5-6 महीने अच्छे निकले, ओके फाइन, रिलैप्स हुआ, गए हॉस्पिटल, वापस आए, थोड़े दिन अच्छे निकले। तो पर ये है कि जो मैम बोल रहे हैं ना कि आप अपनी पेन को गो थ्रू करो, और अल्टीमेटली इट इज अ हॉस्पिटल वेयर यू हैव टू मेक अ चॉइस कि आप चाहते क्या हो। ठीक है, मैम कौन सी लाइफ लीड करना चाहती है, मैं कौन सी लाइफ लीड करना चाहती हूँ, आप कौन सी लाइफ लीड करना चाहते हो, आपकी चॉइस। तो अगर आपकी चॉइस है कि आपने रोज इस पेन से नहीं गुजरना जी जी। और अपनी बची कुची लाइफ को हेल्दी करना है, तो फिर हम सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। चलिए बिल्कुल। और अगर हमें है कि ठीक है अब देखा जाएगा जो होगी, बिकॉज एक वो भी एटीट्यूड आ जाता है, जी फिर जी। हम रिकवरी में नहीं जा पाएंगे। जी। और आपकी पेन के साथ साथ डोंट फॉरगेट कि आपके हस्बैंड एक डायग्नोज्ड आइडेंटिफाइड पेशेंट है जिनकी बीमारी फिजिकल है और बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है, बिल्कुल। सो एक बात के बाद इधर भी एडमिशन बंद हो जाएगी। सो वी बिल्कुल। हैव टू सी एवरीथिंग। जी। हाँ जी, तब आपका कोई क्वेश्चन और शेयरिंग? क्या महसूस हुआ आपको शेयरिंग के बाद, रीडिंग शेयरिंग के बाद? डेटा इंटरवेंशन के बाद आपको क्या महसूस हुआ? गुस्सा आ रहा है? क्या एक्सपेक्ट करते थे आप उसके बाद हो? जो किया वही एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप सर कुछ क्वेश्चन, कुछ कहना चाहते हो? नहीं, एक्सपेक्टेशन तो वही थी जो आनी है, क्योंकि पेशेंट है। पेशेंट तो नो ही बोलेगा, ठीक है कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि पेशेंट है। उसके अंदर का जो वो एनिमल ब्रेन है, वो जो मैसेज देगा उसने आगे दे देना। तो वो मैसेज ऐसे ही चलने हैं जब तक कि उसके पास वो स्किल्स नहीं आनी, जब के पास वो टूल किट नहीं मिलनी, पूरी होनी नहीं, जिसने उसको लेके जाना उस तरफ। बिल्कुल, यही है। क्योंकि पेशेंट भी जब नो बोल रहा है और परेशान होके नो बोल रहा है, तो क्योंकि उसके पास भी कोई औजार नहीं है ना, उसको भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूंगा, ये क्या हो रहा है। तो इवन ही नीड्स टूल्स। उसको भी एक ये फियर साइकोसिस है कि ये चीज पे मैं निर्भर हो चुका हूँ, इस चीज के बिना मैं जीऊंगा कैसे। लाइक नितिन सेज कि जब वो हॉस्पिटल में डीएमसी में राउंड पे आते थे ना, तो दे यूज्ड टू आस्क कि तुम्हें क्यों जरूरत है अल्कोहल की, तो ही यूज्ड टू से कि मेरे को लगता है कि मैं तो टॉयलेट भी इसके बिना नहीं जा सकता, मैं तो लोगों को फेस नहीं कर सकता इसके बिना। तो मतलब डिपेंडेंसी इस हद तक चली जाती है। तो जाहिर है हमारे पेशेंट के अंदर भी बहुत फियर है कि वो भी इसके बिना क्या करेगा। मतलब दैट इज दी
फियर ऑफ डिपेंडेंस, मतलब पेन फैमिली का, फियर फैमिली का, पेन पेशेंट का, फियर पेशेंट का, दोनों साथ साथ चल रहे हैं और दोनों में उतनी इंटेंसिटी है। सर इसमें ना जो आपने बात बोली ना, उसमें पेशेंट का, अगर वो सर्टिफाइड पेशेंट है, क्योंकि इधर हैं तो वो सर्टिफाइड पेशेंट है, तो उसका केमिकल इम्बैलेंस, मैं तो ये मानती हूँ कि केमिकल इम्बैलेंस सब में है, पेशेंट में भी है, फैमिली में भी है, लेकिन ये है कि अगर डिग्री अलग है, मैक्सिमम डिग्री पेशेंट में है, फैमिली में डिफरेंट ग्रेड्स में, किसी में ज़्यादा किसी में कम। पर केमिकल इम्बैलेंस का क्या मतलब कि हम प्रॉपर अपनी सोच नहीं कर पा रहे, पेशेंट तो बिल्कुल ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसका केमिकल है ही केमिकल, सारा कुछ तो फिजिकल डिसऑर्डर है ना, कोई ऐसा तो है नहीं कि हवा में ही डिसऑर्डर है। और उसके कारण डिस्ट्रक्शन फैमिली में भी तो हो ही रही हाँ है। ही ना, फैमिली की, इसलिए तो फैमिली का भी केमिकल इम्बैलेंस शुरू हो जाता है ना, क्योंकि उसको देख के उसके साथ, जैसे अभी मैंने बताया, मैं अपने पेशेंट मेरा मुंबई में बैठा है, मुझे कॉल कर रहा है, ऐसी बातें कर रहा है, क्या वो रात को मैं आराम से सो पा रही थी? नहीं, क्योंकि जब वो शाम को ही बात होती थी, पूरे दिन होती नहीं थी, जब वो रात को ऐसे ऐसे रिग्रेटफुल बातें करता था, तो क्या रात को हम आपस में बात करके क्या आराम से सो पाते थे? नहीं सो पाते थे। और हमारे में भी ये इंसोम्निया, ये सारी इश्यूज, सारी मेडिकल इश्यूज, मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस, मुझे गट के इश्यूज शुरू हो गए, क्योंकि ये सारी चीजें चलती है, फैमिली में भी चलती हैं, लेकिन फैमिली उनको इग्नोर कर देती है, उनका ध्यान सिर्फ पेशेंट पे होता है। लेकिन ये है कि पेशेंट, जैसे मैम ने कहा ना, कि पेशेंट के साथ में हमें भी, फैमिली को भी उस फियर, उस पेन से साथ में टैकल करना है, सिर्फ पेशेंट पे नहीं, हमने फोकस रखना है, लेकिन नहीं, वो with the- और हमें पहले करना है, पहले करना। क्योंकि पेशेंट की कैपेसिटी हमसे कम है, पेन बेशक जितनी मर्जी हो, पेशेंट की कैपेसिटी नहीं है, और एक्सेप्टेंस नहीं आ सकती, क्योंकि डिनायल पेशेंट की बीमारी का सिम्टम है। मैम इसमें मैं अपना ऐड करना चाहती हूँ अपनी शेयरिंग के, मैं यहाँ पे 12 साल पहले आई थी, 2011, और तब मेरा पेशेंट खुद लेके आया था यहाँ पे, 10th स्टैंडर्ड में वो था, कि मेरे को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसने बड़े बड़े एग्जाम्स क्लियर किए हैं, सब कुछ किया है, हमें लग रहा है कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है, एग्जाम्स क्लियर कर रहा है, ठीक कर रहा है, लेकिन उसने कहा कि मेरे को ठीक नहीं लग रहा, और मुझे सेकंड दिखाया, ट्रीटमेंट शुरू हुआ, और रेगुलर ट्रीटमेंट लिया, साथ में 11th-12th पढ़ा, नंबर अच्छे आ गए, हम बीमारी में ज़्यादा डिटेल में गए ही नहीं। हाँ, हमने बोला भी था, डॉक्टर साहब ने बोला था कि इसको अमृतसर से बाहर मत भेजो, इसको यहाँ पे आराम से, इसको एमबीबीएस की सीट मिल रही है गवर्नमेंट सेक्टर में इधर, तो नहीं, हमारे तो इतना अच्छा रैंक आया, तो हम तो बाहर जाएंगे, हमें तो मुंबई का अच्छा कॉलेज मिल रहा है, हम वो करेंगे। और उसके बाद में भी हमें बीच में इश्यूज आए हैं, बीच में उसको एंग्जाइटी इश्यूज आते थे, पता नहीं कैसे फ्लाइट पकड़ के इधर आता था, फिर यहाँ से ट्रीटमेंट करा के फिर जाता था, लेकिन ये ऑफ एंड ऑन चल रहा है, जैसे जो आप बोल रहे हैं ना, ऑफ एंड ऑन चल ही जा रहा है, और वो ऑफ एंड ऑन चल के लास्ट ईयर कंप्लीट साइकोसिस में गया है, वो टोटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड। कंप्लीट साइकोसिस का मतलब होता है वो बिल्कुल कनेक्टेड नहीं था आसपास, जिसमें डिल्यूजन्स, हेल्यूसिनेशंस आ जाते हैं, बाहर की आपको आवाज़ें सुननी शुरू हो जाती हैं, आप लगता है कि आप ही सारा कुछ कंट्रोल कर रहे हो। और आज की डेट में 1.5 साल बाद अब वो आगे अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा और है। आपके केस में मुश्किल भी रहा ना मैम, अब हमारी फैमिलीज में जहाँ जहाँ सब्सटेंस, अल्कोहल, ड्रग्स इन्वॉल्व हैं, हमारे लिए इजी आइडेंटिफाई करना, दिख रहा था। इनके लिए तो था कि इंटेलिजेंस कैसे खराब हो सकती है, हाँ, मुझे लग रहा था मतलब वो इतना पढ़ाई अच्छी की पढ़ाई, एडिक्शन कैसे हो हाँ, सकती है। पढ़ाई करना कौन कहता है खराब है, लेकिन अब जब हम इसमें आए हैं ना, कमिंग इनटू दिस प्रोग्राम, हमने यहाँ पे कोई रियलाइज बात नहीं, किया, इट्स ओके, हाँ गेट अप। हाँ get up. हम इस प्रोग्राम ने हमने रियलाइज किया कि थ्रू आउट दिस, उसके पढ़ाई की तरफ तो एडिक्शन, पढ़ाई तो कर रहा था, लेकिन उसकी थॉट्स बहुत वेवर कर रहे थे, कभी मुझे क्रिकेट खेलना है, कभी मुझे शेयर मार्केट का सीखना है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फ्लीटिंग चल रहे थे, और सरप्राइजिंगली ऑल एडिक्ट, addict- एवरीबॉडी डज हाँ द सेम। हाँ, और सभी ये करते हैं, लेकिन हमें तभी ये रियलाइज नहीं हो रहा था कि ये ऐसे फ्लीटिंग क्यों हो रहा है, और हमें इंडिकेशंस भी सर दे रहे थे, मेडिसिन भी बीच में ऑफ एंड ऑन हम ले रहे हैं, सर कह भी रहे हैं कि इसका ध्यान रखो, फिर भी नहीं हम ध्यान रख रहे थे। लेकिन मैंने तभी मैम आपको बोला, जब मैं लास्ट ईयर लेके आई हूँ ना अपने पेशेंट को इधर, मुझे अपनी पूरी जिंदगी का पहली बार सबसे ज्यादा पेन हुई है, मुझे लगा कि एज अ मदर आई हैव फेल्ड एज अ मदर, अगर, क्योंकि वो तो पेशेंट है, अगर मैंने नहीं उसका ध्यान रखना तो किसने ध्यान रखना है उसका, बताओ। तो वो जो पेन, मुझे उसके पहले मुझे पेन फील ही नहीं हुई थी, उसके पहले मैं वो खुश हो रही थी कि हाँ ये देखो इतना अच्छा कर रहा है,
अब इतना अच्छा रैंक ला रहा है, अब वो कह रहा है मैंने इधर पीएचडी करनी है, और मैं खुश होकर बताती थी कि हाँ मेरा बच्चा बहुत अच्छा कर रहा आई है, लेकिन बिलीव द सेम, हाँ पेन नहीं होगा तो नहीं, ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। और जब वो पेन आई ना, तो उस पेन ने ये सारी चीजें पीछे, मैं कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरा बच्चा आगे पोस्ट ग्रेजुएशन ना करे, कहीं ना पहुंचे, मुझे किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, आई वॉन्ट माई सन, माई पेशेंट हेल्थ, दैट्स ऑल, फुल स्टॉप, बस, और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि वो अगर हेल्दी नहीं होगा, मेरी लाइफ भी हेल्दी नहीं। मैं सेल्फिश हूँ, अगर मैं सेल्फिश नहीं होती ना तो मैं भी उसके साथ में रगड़े खा रही होती। लेकिन मैंने कहा कि अगर वो नहीं हेल्दी होगा, मैं नहीं हेल्दी होंगी, पूरी फैमिली नहीं हेल्दी होगी। पूरी फैमिली बिखर रही थी, बच्चे अपना अपना पढ़ रहे थे, पर कोई किसी से कनेक्टेड नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये मेरे को रियलाइजेशन हुई है ना, अभी भी मैं नहीं कहती हूँ कि मैं कोई इसमें बहुत तीर खाऊं, 1.5 साल हुए हैं, अभी भी आई हैव टू बी केयरफुल। डेली मीटिंग सुनते हैं, डेली मीटिंग में आते हैं, नहीं आओ तो मैं जा आपकी सकते हैं। इस बात से अग्री नहीं करती। आप सेल्फिश नहीं हुए। सेल्फिश आप तब थे जब आप अपने अकॉर्डिंग अपने बेटे को और उसकी लाइफ को देख रहे थे कि मेरा बेटा ये बने, मेरा बेटा ये करे, मेरा बेटा बॉम्बे जाए। दैट टाइम यू वर सेल्फिश। अब तो आप अपने बेटे का सोच रहे हो मैम। दिस इज सेल्फ केयर एंड हिज हाँ, केयर। नहीं, मैं तो मैम यहाँ पे बैठ के मैंने ये सीखा कि जैसे ये मैम कह रहे हैं कि इनको पता ही नहीं है कि इनकी पेन बर्दाश्त करने की कितनी हद है। इसका मतलब आपका सेल्फ फोकस नहीं, Yeah, अपने ऊपर self फोकस नहीं care. है। सेल्फिशनेस, वो सेल्फिशनेस कि मैंने अपनी फिक्र, Care मुझे करें। कितने साल से प्रॉपर्ली रात को नींद नहीं आ रही, इंसोम्निया हो रहा है, और मैं दवाई भी नहीं ले रही हूँ। नो नो नो, हम बिना दवाई के हम योगा करेंगे, हम स्विमिंग करेंगे, हम वो करेंगे, और जॉब भी करेंगे, जाके सुबह नहीं भी नींद आ रही तो भी जाके सुबह करेंगे, फिर फ्रस्ट्रेट होंगे, किसी के साथ में कुछ ना कुछ इंटरेक्शंस हो ही जाती हैं गलत फिर। हाँ, लेकिन यहाँ बैठ के फिर मुझे अभी रियलाइज हुआ कि उसकी ठीक करने में मेरे को अपना ठीक होना बहुत जरूरी है। और डेफिनेटली इनिशियली पूरा फोकस पेशेंट पे था, पर राइट नाउ माय फोकस इज मोर ऑन माई सेल्फ। क्योंकि मैंने देख लिया डॉक्टर नम्रता मैम, मैं आपको क्लियर बताऊं, जिस दिन मेरा सिस्टम हिलता है ना, मेरा पेशेंट का हिलना है, अगले दिन 2-4 दिन में उसका भी सिस्टम हिलना ही हिलना है। अगर मैंने कुछ गलत वीक एक्शन किया तो मेरे पेशेंट ने वीक एक्शन तो तैयार ही बैठा है उसके लिए, उसका तो वीक एक्शन सिर पे ही बैठा हुआ है उसके। तो आई हैव टू फोकस ऑन माई सेल्फ, चाहे इसको सेल्फिशनेस बोलो, इन अ वे कनेक्शन विद ईच अदर। वेरी राइट। तो मैम इसलिए मैं आपको कह रही थी कि आप अपनी पेन की लिमिट को आप अभी असेस करो कि आप कितनी पेन, क्योंकि पेशेंट पेशेंट है, लेकिन आपकी पेन की लिमिट है कि नहीं। अगर नहीं है तो बताओ मेरी लिमिट नहीं है, अगर है तो पेन में रहिए, इट्स योर चॉइस। वैसे भी लाइफ हाँ, में किसी भी बीमारी को लेकर, किसी भी सिचुएशन को लेकर, बीमारी को ही ले लो, चोट लगती है तो हम भागते हैं सॉल्यूशन की तरफ, दर्द होता है तो हम जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो अगर यहाँ बैठकर भी अगर हम पेन महसूस नहीं कर रहे, हम ट्रीटमेंट को रिसीव ही नहीं कर पाएंगे। मतलब हम उतनी शिद्दत से और सीरियसनेस से एक इलाज को फॉलो नहीं कर पाएंगे। मैम उसमें पता है क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर मैं ये कह सकती हूँ कि फिजिकल पेन तो हमें बड़ी आराम से दिख रही है, पर मेंटल पेन हमें दिख नहीं रही। और मेंटल पेन ना पेशेंट की दिख रही है ना अपनी दिख रही है, अपनी भी नहीं हम रियलाइज करते कि हमारी मेंटल पेन, हम तो देख रहे हैं मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे गट के इश्यूज हो रहे हैं, मुझे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, मुझे वो गर्दन दर्द हो रही है, बैक हो रही है, ये क्या है, ये बेसिकली मेंटल पेन ही आ रही है ना बाहर, पर हम वो चीज़ रियलाइज नहीं करते। तो कहने का मतलब कि जब तक हम इस चीज में रहेंगे ना कि फिजिकल चीज तो हम एक्सेप्ट कर लें, लेकिन मेंटल जो हमारी पेन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक हम इस चीज में अपने आप को, मतलब पेशेंट की तरफ तो क्या अपनी तरफ भी नहीं ध्यान दे सकते। बताइए मैम आप क्या करना चाहते हो। हाँ जी मैम, अब आप ऐड करो कुछ। अब आप थोड़े से बेटर फील कर रहे हो। सर ने भी परमिशन दे दी, आप कह दो। हाँ जी मैम, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। जब मैं वीक एक्शंस करती हूँ तो मेरा पेशेंट तो पहले ही तैयार होता है। प्लीज यू इलेबोरेट इट। गिव सम एग्जांपल। मैं आपको मैम एग्जांपल से कहती हूँ, हम वीक एक्शंस और स्ट्रॉन्ग एक्शंस को कैसे डिवाइड करते हैं। वीक एक्शंस वो होते हैं जो हमारे चिन ब्रेन से आ रहे हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एक्शन वो है जो हम पीएफसी पे बात पे करें।
अब वीक एक्शन क्या होगा, मैं आराम से बैठी हूँ अपने बाट में, अपना काम कर रही हूँ और सडनली मुझे पता चले अच्छा वो बच्चे का ना वो उसको वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन मिल रही है, वो है यार ਉਹਨੂੰ क्लिनिकल लाइन ਉੱਥੇ मिल रही है, मेरे बच्चे ਨੂੰ नहीं मिली। दिस इज अ वीक एक्शन। पहले हम इसको आइडेंटिफाई नहीं करते थे, पहले हमने कभी नहीं सोचा कि ये वीक एक्शन। ये प्रोग्राम में आके यहाँ पे हमने अपने थॉट्स को एनालाइज करना सीखा, अपने थॉट्स को कैटेगराइज करना सीखा कि ये वीक एक्शन है मेरा। मतलब एक सेंस ऑफ कंपैरिजन आ गया, अच्छा और उसका बच्चा नॉर्मली तो तो हम ये इसको कर रहा अच्छा है। मानते हैं। हाँ हाँ, अब देखो मैं डिपार्टमेंट में बैठी हूँ, कुछ ना कुछ तो बात होने ही वाली है, फलाना इधर पहुंच गया, फलाना रिजल्ट्स आए, काउंसलिंग हो रही है, ये हो रहा वो हो रहा है, सब बात करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले तो बहुत ज्यादा इसमें रचे पचे रहते थे। अब ये है कि अब मुझे जैसे मुझे रियलाइज हुआ ना कि आज मेरे दिमाग में थॉट आया है, क्योंकि मेरा पेशेंट जो है वो ऑलरेडी बहुत लो सेल्फ एस्टीम में ऑलरेडी है, उससे ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, ट्रीटमेंट में है, रिकवरी में है। क्योंकि जो इधर आया है ना पेशेंट, वो वही आया है जिसका टॉक्सिक शेम बहुत ज़्यादा है, लो सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा है, तो ही वो पेशेंट है। बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना बिलो ज़ीरो लेवल है वो। अब वो ज़ीरो लेवल से ऊपर आया है, फर्स्ट सेकंड डिग्री तक आया है, ऊपर आया। तो अगर मैं उस चीज़ को कैरी करके घर में लेके जाऊंगी, तो हम जब घर में रहते हैं तो हमारे एक दूसरे के साथ वाइब्रेशंस कनेक्ट करती है ना, जिसको हम पावर ऑफ अदर्स सर कहते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस एक दूसरे को दे रहे हैं तो क्या नेगेटिव नहीं देंगे, बताइए। और तो मैं मतलब हमारी बॉडी लैंग्वेज में, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन में, इवन हमारे वर्ड्स में एक्सप्रेस हो जाता है। दैट इज व्हाई ना भी एक्सप्रेस हो कॉन्शियसली तो हमारे वही थॉट्स सेम कहीं ना कहीं कनेक्ट एवरीवेयर। कर जाते हैं। और ये मैंने इधर बैठ के प्रोग्राम में बैठ के रियलाइज किया सर की बात सुन के कि पावर ऑफ अदर्स इज वेरी इफेक्टिव। अगर सर बार बार क्यों कहते हैं कि फैमिली इधर बैठे, फैमिली इधर बैठे, क्योंकि कहते पेशेंट तो हमने ठीक करके घर भेज दिया, हर्मिटेज में 100 डेज लगा के, उसकी सारी जैसे ओवरऑलिंग आप बोलते हो सारी हो गई, उसका डिटॉक्स हो गया, इमो केमिकल इम्बैलेंस ठीक कर दिया, उसको स्किल सिखा दिया। लेकिन अगर फैमिली ही कुछ तैयार नहीं है, फैमिली ने कुछ स्किल्स नहीं सीखे, पेशेंट वहां जाके आप बताओ क्या करेगा, क्या वो ऊपर नीचे जाएगा, बताओ। उसी फैमिली में उसने रहना है ना। तो अगर मेरा पेशेंट 100 डेज लगा के अब डेली इतनी रिकवरी में अपना एफर्ट लगा रहा है, डेली वो 6 घंटे लगा के अपने जॉब पे जाता है, कई बार 8 घंटे, कई बार शाम को भी आता है, इतना एफर्ट लगा रहा है, और वो कहता है कि मुझे एफर्ट में बहुत मुश्किल आ रही है। तो अगर मेरे को एक मिनिमम से एफर्ट लगाना अगर मुश्किल लग रहा है, तो दिस थिंग आई एम मोर बिगर पेशेंट देन माई पेशेंट। अगर मैं अपने इतना सा वीक एक्शन को आइडेंटिफाई नहीं करती या उस पर काम नहीं करती, आई हैव टू वर्क अपॉन दैट। आप फिर भी चैलेंज करो इसको, इफ यू डिसएग्री विद दिस आप बात करो, पुट फोर्थ योर व्यू पॉइंट कि आपको क्या लगता है।